بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیصلہ آپ کا۔ میرا نام ہے عائشہ یوسف۔ ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگر ہم لوکل پالیٹکس کے حساب سے دیکھیں اس میں بھی، اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے حساب سے دیکھیں تو اس میں بھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو امریکہ کے دورے پر موجود ہیں، ان کی ملاقات ہونے کے لیے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے۔ اب اس کو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان تو اس کو اپنی فتح بھی قرار دے رہا ہے، اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ کے بعد کی جو سچویشن ہے اس کے تناظر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کے کانٹیکس کے اندر بھی کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بٹ پاکستان جو آلریڈی کلیئر ہے اپنے سٹانس کے اندر کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیا واقعی میں امریکہ کی جانب سے کوئی ایسا پریشر آ سکتا ہے کہ پاکستان کو اپنی نیوٹرلٹی کے اوپر، جو رائٹ ناؤ بڑی سینسٹیو قسم کی اس کی پوزیشن ہوئی ہے، اس کے اوپر کچھ آگے پیچھے ہونا پڑے گا؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی کہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے کیا واقعی میں مزید ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے؟ آپ سے تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیا سے بھی بات کی تھی، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایران نے میسج بھجوایا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ کیا واقعی میں دیر ہو چکی ہے؟ کیا ایک مرتبہ پھر سے یہ جو فریقین ہیں یہ ٹیبل کی ٹاک کے اوپر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں انٹروڈکشن کیوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں احمد حسن عربی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ احمد ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر صحافی واشنگٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے انور اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیوز کے اندر۔ جن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انالیسس جو ہے کرنٹ سچویشن کے اوپر، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، بہت سے مبصرین یہ بات کریں ایون امریکہ کے کہ اس کو ایران اور اسرائیل کے کانٹیکس کے اندر صرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو فوکس ہوگا وہ انڈیا پاکستان کی سچویشن کے اوپر ہوگا، اسپیشلی آفٹر دا کانفلکٹ۔ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس طرح کے جو وزٹس ہوتے ہیں وہ وے اہیڈ آف ٹائم پلانڈ ہوتے ہیں، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ایک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور اسپیشلی پوسٹ پہلگام جس طریقے سے پاکستان نے اس چینجنگ ورلڈ آرڈر میں، اس نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر میں، جو کہ پہلے نیو لبرل تھا، اس کے بعد ٹرانزیشن ہو رہی ہے نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر، اس کے بعد گرینڈ اسکیم آف ایونٹس میں جس کو دا گلوبل چیس بورڈ کہتے ہیں، وہاں پہ جو ورلڈ ٹرانزیشن کر رہے فرام اے یونیپولر اپریٹس ٹو اے ملٹی پولر اپریٹس، جس میں امریکہ اب اس وقت امریکہ واحد سپر پاور نہیں ہے، چائنا اور رشیا کاؤنٹر بیلنس کر رہے ہیں، ایک تھوسائیڈیڈیز ٹریپ جس کو کہتے ہیں وہ چل رہا ہے ان تین پاورز کے درمیان میں۔ سو اس ساری بدلتی سچویشن میں جس طریقے سے پاکستان نے ریئلائزنگ دا امپورٹنس آف ہارڈ پاور، کیونکہ ہارڈ پاور از دا اونلی پاور دیٹ از لیفٹ ان دا نیو ریئلسٹک ورلڈ، تو اس ہارڈ پاور کو سمجھتے ہوئے پاکستان نے، انڈیا نے جو پاکستان کے خلاف ایگریشن کیا، اور صرف پوسٹ پہلگام کے ایونٹ کے بعد والا نہیں، اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد والا نہیں، جو ڈپلومیٹک، سائیکولوجیکل، انفارمیشن وارفیئر اور اکنامک ایگریشن پچھلے 10 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اس کی اگینسٹ پاکستان نے جو اپنی پاور پروجیکٹ کی ود ان انڈیا، اس نے جو ریپرکشنز پوری دنیا میں بھیجے، جو ٹیکٹونک شفٹ کیا، اور پاکستان ایمرجڈ ایز اے وائس آف ریزن۔ پاکستان نے کیا ڈیفرنٹلی کیا، اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کیا آبزرو کیا۔ ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کروں گی شو کے اندر۔ انور صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ رائٹ ناؤ وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ امریکی اور امریکی مبصرین یا امریکی صحافی جو ہیں وہ کرنٹ اس ملاقات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کرنٹ سچویشن کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی ہونے والی ہے میٹنگ؟ دیکھیں، یہ تو سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اور امریکن میڈیا میں بھی والے بھی اتنی سرپرائز ہے جتنے ہم لوگ ہیں، کیونکہ کل شام تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ ملاقات ہونے والی ہے، اور اس پہ ہر طرح کے تبصرے آ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، مثلا یہاں مائیکل کوگلمین بڑے مشہور مبصر ہیں، ساؤتھ ایشین امور کے ماہر ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بات درست ہے کہ اس میں بہت ساری بات چیت جو ہے وہ ایران کے حوالے سے ہوگی، لیکن یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ یہ ساری کی ساری گفتگو اور یہ ساری میٹنگ ایران کے لیے ہے، بلکہ ایران کے لیے نہیں ہے۔ یہ میٹنگ اس میں بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوں گے، پاک بھارت تعلقات بھی ہوں گے، کشمیر بھی ہوگا، تو ضعفہ تعلقات بھی ہوں گے، لیکن اس سے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو ایران میں جو کچھ ابھی ہوا، جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ اس پہ بھی بہت سیر حاصل گفتگو ہوگی۔
ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, یہ میٹنگ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, یہ بہت پہلے سے اسکیجول تھی یا پھر یہ اچانک میٹنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ عاصم منیر صاحب دورہ امریکہ پر تھے اور اچانک سے یہ میٹنگ پلان ہوئی. میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ پھر ہم زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ ایران اسرائیل سچویشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں. دیکھیں, اچانک اگر کوئی میٹنگ ہو جاتی تو پھر بہت سارے اتفاقات اکٹھے کرنے پڑیں گے. مثلاً یہاں ISI کے سربراہ بھی ہیں, صرف آرمی چیف اکیلے نہیں ہیں. مثلاً ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. اگر جو آرمی چیف جو ہیں وہ صرف ڈیفنس امور پہ بات چیت کرنے آئے تھے, اور اگر سینٹ کام سے جو اس طرح ہوتا ہے سال 2 سال میں مختلف ملکوں کے فوجی سربراہ سینٹ کام میں آ کے ملتے رہتے ہیں ان کے کمانڈر سے, تو اگر اس کے لیے آئے تھے تو اس جو وفد ہوتا ہے اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس میں اتنے سینئر لوگ نہیں شامل ہوتے ہیں, وہ آرمی چیف ہوتے ہیں, ان کا سٹاف ہوتا ہے, سیریمونیل سی میٹنگ ہوتی ہے, تقریبات ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کی جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں. اس طرح سارے اہم افراد کا ایک جگہ موجود ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اچانک میٹنگ نہیں تھی, پہلے سے پلان ہوا تھا اور اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے. رائٹ. سعید محمد خان صاحب, آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں. آپ کا ٹیک جو ہے اس میٹنگ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا واقعی میں پاکستان کی ڈیفینیٹلی پوزیشن تو بڑی امپورٹنٹ ہے کرنٹ سیناریو کے اندر, لیکن انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بعد پاکستان کی جس طرح سے تعریف کی اور کئی مرتبہ تعریف کی, اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے جب میڈیا سے بات کی تب بھی وہ تعریف بھی کر رہے تھے, عاصم منیر صاحب کی بھی انہوں نے تعریف کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کس تناظر میں یہ میٹنگ جو ہے زیادہ ہوگی, یا فوکس اس میٹنگ کے اندر کس بات پر زیادہ ہوگا؟ میرے خیال میں کہ جہاں اس میٹنگ کے اندر انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کو ڈسکس کیا جائے گا, وہاں ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو بھی ضرور ڈسکس کیا جائے گا. جب اتنی ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جو امپورٹنٹ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے. دیکھیے, انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگ اس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب سیز فائر ڈکلیئر ہوا تھا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایک ثالثی کا کردار ادا کریں گے, اور جو کشمیر کا ایشو ہے اور جو پانی کے ایشو ہے اور شملہ ایکارڈ ہے, اس کو ریزالو کیا جائے گا. اور پاکستان کا بھی ہمیشہ سے یہی سٹانس تھا کہ جی کہ اس علاقے میں امن صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب جو کنٹینشس ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. اگر آپ کی نالج میں ہوگا کہ کل پرائم منسٹر مودی نے امریکہ کی ثالثی کو رد کیا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس موقع کے اوپر آئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم کی میٹنگ بہت معنی رکھتی ہے, کیونکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے الفاظ کے اوپر پورا اترنا ہے, اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا سیز فائر کرواتے وقت اس کو فلفل کرنا ہے. جہاں تک ایران اور اسرائیل کا تعلق ہے, پاکستان اس علاقے میں ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے, اور ایران میں جو کچھ ہوگا اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان پر بھی اثر ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ ڈسکس ہو تو پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو قوم کی امیدیں ہیں اس کے حساب سے فیلڈ مارشل عاصم فیصلہ کریں, اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کہ کل ہمارا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. جنرل صاحب, آپ کیا لگتا ہے, کچھ لوگ یہ بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد مشرف کی جب میٹنگ ہوئی تھی اور بعد میں جب یہ بات کی گئی تھی either you are with us or you are with the terrorists, کیا اس طرح کی کوئی سچویشن اس میٹنگ کے بعد یا اس دورے کے بعد بن سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ Aisha, thank you for the invite. It's a great pleasure amongst being such an elite panel. دیکھیں, 9/11 کے بعد اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے جی, گورنمنٹ میں بھی بہت فرق ہے, اور امریکہ جو ہے وہ 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد یہاں سے آلموسٹ جنگ ہار کے ہی گیا ہے, ایک کیوٹک افغانستان چھوڑ کے گیا. اور پریزیڈنٹ, یہ میں نہیں کہہ رہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو شیمفل وڈرال کا نام دیا تھا انہوں نے, وہ کہ پالیٹکس کر رہے تھے بٹ ایک بڑی سٹیٹ کا شیمفل وڈرال یہاں سے ہو کے جانا. تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کوریجن اور انٹیمیڈیشن کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وار بھی آپ جیت جائیں, چاہے آپ کے پاس جتنے بھی پارٹنرز ہو. آج کا پاکستان چینج پاکستان ہے. دے آر ٹاکنگ ٹو اے پاکستان جس نے اپنی ریسنٹ ہسٹری میں, ریسنٹ پاسٹ میں اپنی ڈیفائنس دکھائی ہے.
दे आर टॉकिंग टू अ पाकिस्तान जिसने रिसेंट हिस्ट्री में पास्ट में अपना डिफेंस अपनी पोटेंशियल और सबसे बड़ा अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ ए नेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप के आप इलेक्शन के दिनों में से लेके प्रेसिडेंसी तक और इस हमारे कॉन्फ्लिक्ट से पहले तक देखें, पाकिस्तान इज टोटली मिसिंग फ्रॉम दी स्टोरी जी। पाकिस्तान कहीं फिगर आउट नहीं रहा किसी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे ईरान का कॉन्टेक्स्ट हो चाहे अफगानिस्तान का। इस लड़ाई से थोड़ा अरसा पहले पाकिस्तान और अमेरिका का एक जो ऑलरेडी कोलैबोरेशन चल रहा है, एक खामोश कोलैबोरेशन चल रहा था विद रिगार्ड्स टू द टेररिज्म जो अफगानिस्तान की सॉइल से, क्योंकि अफगानिस्तान अब अमेरिका को भी पता है कि ये एक फ्रेंचाइजेज यहाँ पे बहुत सारी आ गई हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्पॉयलर्स जो इंस्टेबिलिटी के फैक्टर्स हैं मेजर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियंस, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त इस रीजन में इंडिया है और मिडिल ईस्ट में इजराइल है। तो उसको वो यहाँ पे आ गया है और वो बजाय अपने मेरे कंपटीटर को चेक करने के अपने अजाइम पूरे कर रहा है। दैट्स व्हाई दे आर अनॉयड। फिर पाकिस्तान का जो अभी आर्मी चीफ का वहां पे जाना, एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही इज टॉकिंग टू पाकिस्तान, ही इज टॉकिंग टू द मिलिट्री कमांडर हु हैज रिसेंटली वन अ वॉर, और उसने अपने परफॉर्मिंग कमांडर के साथ वो बात कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि देयर इज अ फोर्स विच इज टू बी रेकन विद, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने उसका जो वॉच डॉग था जब उसको भी नहलाया शलाया तो शान गिर रहे हैं और एक स्ट्रे डॉग के तौर पर निकला है, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। फिर अभी मोदी जो दौरा करके आए हैं अभी G7 से और उनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और उसके बाद मिश्री की ये इमीडिएटली ये स्टेटमेंट जो आज उन्होंने जारी की है जिसमें वो कह रही है हमें आपकी नहीं चाहिए, तो ये तो पहले भी सालिसी पहले भी कह सकते, इसका मतलब है वो कोई बातचीत अच्छी नहीं हुई है। एक और बात भी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो इंशाल्लाह वो ऑपरेशन सिंदूर करते जाएंगे। हमें बड़ा नहीं बोलना चाहिए, वी आर नॉट हेवरिस्टिक, बट ऑपरेशन कलंक का टीका भी पाकिस्तान ने तैयार रखा हुआ है जी। तो वो जितना सिंदूर वो अनफॉर्चुनेटली वी आर विक्टिम ऑफ अ रेडिकलाइज्ड एक थकी हुई सोच। मेरे लिए तो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर का सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे जो इंडिया की हरकतें हैं वो बताना है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को किस तरीके से बताएं, क्योंकि इतनी गिरी हुई छोटी हरकतें हैं कि वो एक आर्मी चीफ इतने स्टेचर के शख्स के मुंह से बताते शायद वो प्रेसिडेंट ट्रंप समझे कि नहीं ऐसा नहीं मुमकिन हो, जैसे आप बच्चों की शिकायत किसी बड़े से लगा। एक और फैक्टर भी तो है ना अहमद, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दें। चाइना का बड़ा क्लोज एलाय है पाकिस्तान, बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात है और स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस तरह से चाइना खुश भी हुआ कि उनकी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के अंदर टेस्ट करके दिखा दिया कि कहाँ पर स्टैंड करती है। ये भी एक फैक्टर है कि क्योंकि ये ताल्लुकात इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएँ पाकिस्तान और चाइना के कि वो कल को अमेरिका के लिए मसला करे, ये भी वजह हो सकती है इस मुलाकात की। फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो बहुत कोल्ड और कैलकुलेटेड होते हैं, उसमें आपके इमोशंस आपके जज्बात मैटर नहीं कर रहे होते, इंटरेस्ट की गेम होती है। और दुनिया के अंदर दुनिया की तारीख में जितनी भी सुपर पावर्स रही हैं वो सुपर पावर तभी बनी है जब उन्होंने मिलिटरीली अपने आप को इस्टेब्लिश किया। रशिया, सोवियत यूनियन मिलिटरीली इस्टेब्लिश थे, अमेरिका मिलिटरीली इस्टेब्लिश हुई। चाइना पिछले 20 साल से, ये वेस्टर्न एनालिस्ट का ये माइंडसेट है उनका कि चाइना पिछले 20 साल से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है एज अ मिलिट्री पावर, लेकिन उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। और पाकिस्तान ने चाइनीज़ मिलिट्री, चाइनीज़ वॉर मशीन को इस्टेब्लिश किया है एज अ मिलिट्री पावर। सो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान इज़ फॉर चाइना। और जब ये होता है तो फॉरेन पॉलिसी फियर्स के ऊपर चलती है, तो जाहिर है देयर इज अ स्ट्रेटेजिक फियर इन अमेरिकन पॉलिसी। व्हाट्स द इंटरेस्ट ऑफ यूएस टुवर्ड्स पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि वो जो बेसिस की भी बात कर रहे हैं कि ईरान पर अटैक करने के लिए शायद बेसिस भी मांग लें इस मीटिंग के अंदर, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी बड़े कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं यूएस की। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात होगी, इस तरह की कोई बात कहीं पे है। स्ट्रेटेजिकली उनको, जैसे आपने खुद कहा, ज़रूरत नहीं है। अमेरिका का मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉक्सिमिटी जो पाकिस्तान की टुवर्ड्स चाइना और वो हो रही है, उसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिक फियर, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म्स में स्ट्रेटेजिक फियर कहते हैं, वो भी है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी जो क्लोजनेस है उसको ज़्यादा करें, एटलीस्ट बैलेंस करने की कोशिश करें जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं चाइना के साथ। और इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क करते हैं। पाकिस्तान को भी चाइना, अमेरिका और रशिया, इन तीनों के दरमियान में बहुत खूबसूरती के साथ नेविगेट करना चाहिए। हमारे भी इंटरेस्ट हैं और वो प्राइमरी हैं, वो हमें जहाँ से भी मिलेंगे हमने उसको नेविगेट करना है। हमें कोई इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है दुनिया की, चाहे ईस्टर्न ब्लॉक हो चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो, दोनों के लिए पाकिस्तान लाजिम व मजलूम है, और पाकिस्तान इसी के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बिल्डअप करेगा इंशाल्लाह। राइट। सईद मोहम्मद खान साहब, मीना रीजन की जब बात आती है तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बड़ी हमें वाज़ेह नज़र आती है। ईरान को सपोर्ट करता आया, इसराइल को आज तक हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया। आपको लगता है कि अमरीका की जानिब से कोई प्रेशर आ सकता है, जिसका जिक्र आप पिछले अपने जवाब में भी कर रहे थे, कोई प्रेशर आ सकता है और पाकिस्तान
कुछ सरेंडर भी कर सकता है। इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बेस कर रही है IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, और ये वो इदारे हैं, आलमी इदारे जो अमेरिका के कहने के ऊपर चलते हैं, अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें। तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, अमेरिका हर वो चीज करेगा जो इजराइल के बेनिफिट को जाती है, ठीक है ना। अगर आप इस वक्त अमेरिका का एटीट्यूड देखें तो वो एक सालिसी का किरदार अदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो एक साइड लेता हुआ नजर आ रहा। सो अगर जब बातचीत होगी दो बड़ों के अंदर तो ये बात भी डिस्कस हो सकती है, इसका ये क्यास यानी कि इस पे क्यास किया जा सकता है और ये सोचा जा सकता है कि दोनों इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने अपने पिछले जवाब में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि क्या कहते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसपे हमारे और ईरान के फ्यूचर के ताल्लुकात कभी खराब हों, ठीक है ना। सो देखिए, जब आप इतने हायर लेवल के ऊपर बातें करते हैं तो आप हर टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं, और जरूरी नहीं कि जब आप कोई बात करें तो आपने कोई सरेंडरी कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को करना होता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल फील्ड मार्शल आसिम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने उसके ऊपर कन्विंस कर ले अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, और उनको ये बताएं कि इस इलाके में अमन के लिए बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बजाय वो साइड लेने के उनको एक सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। और लोग, पूरी दुनिया अमेरिका से भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि वो साइड नहीं लेगा, वो एक सोल सुपर पावर होने की हैसियत से वो इस इलाके के अंदर पीस लाने की स्टेप्स को स्ट्रेंथन करेगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एंड कोई ऐसी उनको जगह नहीं, यानी कि कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे हमारे और ईरान के फ्यूचर के ताल्लुकात अफेक्ट हो। ठीक है। जनरल साहब, अब अगर हम इंडिया का किरदार देखें करंट सिचुएशन के अंदर, मोदी ने इनकार कर दिया कि हमें सालिसी किसी भी तरह की कबूल नहीं है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका ने देख लिया कि इंडिया जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है या उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो कहाँ तक है। व्हाट डू यू थिंक, अब उनके ताल्लुकात का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्या ये रवाबित पाकिस्तान और अमेरिका के हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे? क्या कोई ज़्यादा बेहतर कनेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं जैसा कि हमें इंडिया और अमेरिका का नज़र आता था पास्ट में? देखिए आयशा, जैसे अभी अहमद फरमा रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि देयर इज़ नो परमानेंसी ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे अभी वो अलायंसेज और स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप रशियंस में शायद थोड़ा बहुत रह गया हो, उनकी जो हिस्ट्री और ट्रेडिशंस और कल्चर चलता आता है, लेकिन वो भी अभी इंटरेस्ट हैं। जिस दिन उनके इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होंगे वो हमारे करीब होंगे, जिस दिन वो उनके इंटरेस्ट दूर होंगे तो हमारी तो उनके साथ स्टोरी ऑफ बिट्रेल और सीसा की पॉलिसी रही है, तो हमें तो उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि एक तो वो हम चाइना के साथ हमारी, देखिए पाकिस्तान एक बहुत अच्छा ब्रिज प्ले करता है चाइना के साथ भी। अमेरिका कुछ हद तक अपने ताल्लुकात को ठीक करना चाहता है। वो ये नहीं है कि चाइना और अमेरिका की एक जंग का एक समान उनका ट्रेड देख रहे हैं। देखिए, ये जो मल्टीपोलैरिटी और हम इसकी बात करते हैं या बायपोलर हो रहा है या बढ़ रहा है, तो देखें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में तो शायद मल्टीपल, लेकिन इस वक्त जो मिलिट्री जो है ना जी, मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में यूएसए अभी इज ए पावर टू बी वेरी ऑनेस्ट, और चाइना कभी भी फ्रिक्शन में मिलिटरीली किसी जगह पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक फंक्शनिंग मैकेनिज्म होता है, एक स्टेट्स की फंक्शनिंग होती है, तो उसके लिए एक पाकिस्तान को, फिर अफगानिस्तान पे हमारी कन्वर्जेंसेस हो रही हैं क्योंकि उनको भी खतरा है यहाँ से कि ISIL और जिस तरीके से अब मिडिल ईस्ट के बीच में इसकी एप्लीकेशन हो रही है, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जो हो रही है, ये और ज़्यादा इसके लिए खतरात बढ़ाएगी। देखिए ना, अब ईरान को भी आप रिड्यूस कर देंगे तो फ्रिक्शन तो ख़त्म नहीं होगी। एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि पीस हो गया, पीस तो छोटी छोटी फ्रिक्शन रहेगी। कल हुतीज होंगे, हर 4-5 साल के बाद एक आप नया फिनोमेना देखते हैं, और वही फिनोमेना फिर हम सीरिया में रूल करता हुआ भी देख रहे होते हैं। जब पॉलिटिक्स चेंज होती है तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती है। दिस विल कंटिन्यू। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये प्रॉक्सीज, इवन अभी देखें इंडिया इतनी बड़ी पावर है लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी क्या है? मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी टेररिज्म। इजराइल को देख लें,
پھر باقی کنٹریز کو دیکھ لیں, اور اسرائیل بھی کائنڈ آف اے پراکسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے کہ ہم اس کو کیسے کھیلتے ہیں. جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں بیسز یا ہم سے کچھ مانگے گا, ایک تو ان کو ضرورت نہیں, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی آرمی یا ملٹری اگر وہ بات کرتے ہیں تو یہ مشنری ملٹری نہیں ہے. دس از اے پاکستان ملٹری. ہمارا نیوکلیئر پروگرام, دیکھیں جنرل فیلڈ مارشل عاصم کو اب یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ ہمارے کوئی اسرائیل کے خلاف, امریکہ کے خلاف, کسی کے ساتھ کوئی ہمارے کسی کے خلاف کوئی عزائم نہیں ہے. ہم جسٹ سلوشن مانگتے ہیں. ہم جسٹس کے وجہ سے فلسطین کے جو ہے 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, اس کی وجہ سے ہم اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک قابض, آلریڈی قابض ہیں, اوپر سے ان کی بھی زمین چھین رہے ہیں, اور یہ اپنے جو کنسرنز ہیں. جیسے یو ایس کی پالیسی ٹورڈز ایران جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اسرائیل کی وجہ سے, اینڈ یو ایس پالیسی ٹورڈز پاکستان رائٹ ناؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان آلریڈی اسرائیل کی نظروں میں بہت کھٹکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کے انٹرویوز جو ہیں وہ بڑے فیمس ہیں پاکستان کو خاص طور پہ لے کے, کہ ان دونوں سے ان کو خطرہ ہے, اور ایران کے بعد پاکستان پر اٹیک کرنے کی بھی بات ہوتی ہے. پاکستان نیبر بھی ہے ایران کا. تو اس کانٹیکس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ خطرہ ہو نہیں سکتا جی, پاکستان کے لیے خطرہ ہے. لیٹ اس ناٹ لیو ان دی آئی مین اسموک اسکرین کے پیچھے میں رہنے کی کوئی ضرورت. ان کے بالکل عزائم ہے. یہ جو ابھی اپلیکیشن ہوئی ہے بھارت کی پاکستان خلاف, تو اسرائیل از اے میجر ریزن فار دس انوالومنٹ. انہوں نے تو ان کو جا کے حسن کروایا ہے. دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, پراکسی وار پاکستان کے خلاف انڈیا کر رہا تھا. مڈل آف دیٹ پراکسی وار انہوں نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی سچویشن ہے, کے پی میں بھی سچویشن ہے, یہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, شاید لوگ بالکل اٹھ کھڑے ہوں گے, اور مڈل آف مس کیلکولیٹ کیا جی انہوں نے. مڈل آف دی پراکسی انہوں نے کنونشنل ڈال دی, اپنی فورسز ڈال دی. کیوں ڈالی؟ کہ اسرائیل نے ان کو کہا کہ میں نے ایران کے دانت شاند نکال دیے یہاں پہ, میں اس کو ریڈیوس کر رہا ہوں, تم اسی انوائرمنٹ کا پورا فائدہ اٹھاؤ, اینڈ دس از دا ٹائم ٹو ٹیک آؤٹ یور اینیمی پاکستان. اس کے اور نیوکلیئر از دی پالیسی کیپچولیشن چاہتے ہیں نا پاکستان سے. نیوکلیئر اور کشمیر 2 ہی ہمارے مین ایجنڈاز ہیں. تو اس پہ آپ نے, اور ان کی سپورٹ تھی, ان کے یہاں پہ آپریٹرز موجود تھے, ان کے لوگ موجود تھے, ان کے ڈرونز موجود تھے. ہمارا تو پاکستان کی مہربانی ہے کہ ہم صرف ابھی ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی, ورنہ ہمیں جو زخم اسرائیل سے آئے ہیں, اور ہمارے اسرائیل کے خلاف کوئی 2011 میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے نیتن یاہو کی, یہ جو سیفرنائزڈ اور ہندو زائنزم اور یہ جوئش زائنزم کی جو اپلیکیشن ہوئے, ان کا بالکل گٹس جوڑ ہے. دونوں کے ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں. یہ معاملات یہاں پر رکنے والے نہیں ہیں. ادھر ہم زائنزم کا وہ جب ایکسپینشن کریں گے تو اس میں یہ ان کے بھی نیبر سعودی عربیہ, اور ایران کے اندر بھی ہمیں جو ابھی تک خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں بہت سارے انڈینز بھی ہیں جو بیسیکلی اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے. احمد, یہ جو نیکسس ہے اسرائیل اور ایران کا, اس کو آپ نے کس طرح سے اسٹڈی کیا ہے, کیسے دیکھا ہے ان دونوں ریجن, مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی ہے, انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں؟ جی دیکھیں, کونڈولیزا رائس نے ایک دفعہ مڈل ایسٹ کے اوپر ایک کامنٹ کیا تھا. یہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو کریسنٹ کہتے ہیں. برزنسکی نے اپنی گرینڈ چیس بورڈ کتاب لکھی تھی, اس میں سے کہا تھا کریسنٹ ہے یہ مسلم ورلڈ کے چاند کی طرح کا, جس کے ایک اینڈ کے اوپر آپ کو, جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو انڈیا نظر آتا ہے, اور دوسرے اینڈ پہ آپ کو اسرائیل نظر آتا ہے. اور اس کریسنٹ کو کونڈولیزا رائس نے کہا تھا اٹس این آرچ آف انارکی. ہم نے اس کو انارکی کا ایک آرچ کریٹ کرنا ہے یہاں پہ. تو اس کا جو ایسٹرن فلینک ہے ادھر ایک ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے جو کہ ڈیلوژن کے اوپر بیس کرتی ہے, وہ ہے ہندوتوا کی اکھنڈ بھارت. اور ویسٹرن فلینک کے اوپر ایک ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے جو کہ اگین 2000 سال پرانی, وہ کہتے ہیں, انڈیا بھی کہتے ہیں 2000 سال پرانا ہمارا اکھنڈ بھارت ہے, وہ بھی کہتے ہیں 2000 سال پرانا گریٹر انڈیا. ریئلٹی ہسٹوریکل کیا ہے نوبڈی نوز. سو وہ وہاں سے گریٹر اسرائیل, تو وہ وہاں سے ایکسپینڈ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. قائد اعظم جب پاکستان بننے سے پہلے عرب کنٹریز کے پاس گئے تھے تو قائد اعظم نے ان کو ایڈریس کیا تھا اور بتایا تھا کہ پاکستان بننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو ہندو زائنزم ہے یہ اس کو روکنا ضروری ہے, ورنہ یہ پورے مڈل ایسٹ کو تباہ کرے گا. اور اسرائیل کیونکہ ادھر مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے, اٹس اے ڈیگر ان دا ہارٹس آف مسلم, قائد اعظم نے کہا تھا, وہ بھی سعودی عربیہ کے کچھ علاقے کو کلیم کرتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے والے زائنسٹ ہیں, ہندو زائنسٹ, یہ مکہ مکرمہ پہ بھی اپنا کلیم اسٹیبلش کرتے ہیں کہ وہ جی خانہ کعبہ بھی ہمارا تھا. سو یہ ان کا ریڈیکلزم ہے, یہ ان کی ریڈیکل. پاکستان پچھلے 70 سالوں سے اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے, ہم نے ان کو روک کے رکھا ہوا. مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اسرائیل کو روک کے رکھنا تھا. جہاں پہ ہائپوتھیٹیکل سرحد اسرائیل کی ختم ہوتی ہے وہاں سے ہائپوتھیٹیکل سرحد گریٹر انڈیا کی شروع ہوتی ہے. سو ان کا الائنس اور ان کا نیکسس
आइडियोलॉजिकल भी है और इनका ऑपरेशनल भी है। डेविड बिन गुरियान जो इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे 1967 के ज्यूइश क्रॉनिकल में उनकी एक स्टेटमेंट छपी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो फ्रेंड ऑफ अरब्स यानी पाकिस्तान के बारे में, ये अरबों का दोस्त, हमें इससे अरबों से भी ज़्यादा खतरा है और इसके बॉर्डर के ऊपर इंडिया मौजूद है जिसको यहाँ के मुसलमानों से नफरत है। तो हमने इंडिया को यूज़ करना है बोथ कोवर्ट एंड ओवर्ट तरीके से एज अ बेस टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। दिस इज द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ इवेंट्स। ये इन दोनों का नेक्सस है जो आपको एट प्ले इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन सुपर पावर जो है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके बयानात जो हैं कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात, वो समझ नहीं आ रही है कि उनकी पॉलिसी। इसके ऊपर ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि अपनी कैंपेन्स के अंदर ट्रंप हमें नज़र आते रहे नो वॉर की बात करते हुए, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बनकर आ गए हैं, स्पेशली इसराइल और ईरान की सिचुएशन के बाद, एक वॉर मॉन्गर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस वक्त अपनी कैंपेन कर रहे थे, चाहे वो पहली कैंपेन हो या फिर दूसरी कैंपेन हो, उनकी एक ही बात थी और वो थी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरों की वॉर्स के अंदर, दूसरों की जंगों के अंदर हमने बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। और इस मरतबा की कैंपेन में उन्होंने ये भी बात की थी कि अगर कैमला जीत जाती हैं तो फिर हम यही देखेंगे कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जंगें होंगी और उसके अंदर अमेरिका किरदार भी अदा करेगा और अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करेगा। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, यानी कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो फिर हम किसी जंग के अंदर नहीं जाएंगे। अहमद, आप ही से मैं स्टार्ट कर लूँ कि एक वॉर मॉन्गर की तरह आपको लगे हैं इस मरतबा ट्रंप बयानात देते हुए इजराइल के मामले पर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको अभी कहा कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो इंटरनेशनल स्पेशली जो जंग के दरमियान में आप करते हैं, वो बहुत कोल्ड और कैलकुलेटेड होती है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं और उनका जो पॉपुलर सेंटिमेंट था वो एंटी वॉर था। सो अभी जो आप ये जो इनकी स्टेटमेंट्स देख रही हैं, वो आपको बिल्कुल वाज़े है कि वो काफ़ी प्रोवोकेटिव हैं ईरान को लेके, जिस तरीके से लीव तेहरान और ये सारा कुछ, और उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स थी टोटल सरेंडर और ये सारा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ग्राउंड के ऊपर इनकी मिलिट्री मूवमेंट भी देखना पड़ती है कि वो बैक कर रही है उनकी स्टेटमेंट्स को या नहीं, जो कि अभी तक मुझे करती हुई नज़र नहीं आ रही। जो उधर साउथ चाइना सी से ये जो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स और मिलिट्री एसेट्स उठा के लेके आया मिडल ईस्ट के अंदर, फिर साउथ कोरिया से इन्होंने जो एयर डिफेंस उठा के मिडल ईस्ट लाने की बात कर रहे हैं, उससे विद इन जो अमेरिकन पॉलिसी सर्कल्स हैं वहाँ पे रिजेंटमेंट थोड़ी सी आ रही है। और ये मुझे आप कुछ अर्सा पहले नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ था ताइवान का, और उस विजिट के दौरान चाइना अमेरिका को थ्रेट कर रहा था और उधर से अमेरिका चाइना को थ्रेट कर रहा था, जंग हो जाएगी, विजिट नहीं होगा, और वो सारे ब्लफ्स से, इसको स्ट्रेटेजिक ब्लफ्स जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप यूज करते हो, सारे ब्लफ्स से नैन्सी पेलोसी आई, उसने ताइवान का विजिट किया एंड शी वेंट बैक एंड नथिंग हैपेंड। सो अभी भी ट्रंप क्योंकि एक पॉपुलिस्ट लीडर हमेशा अपने पॉपुलर सेंटिमेंट को डिफेंड करता है और उसके लिए वो हर एक्सट्रीम तक जाता है। सो आई एम होपिंग कि ट्रंप अभी भी अपने पॉपुलर सेंटिमेंट को डिफेंड करेगा, और उससे पहले के जो ये जो ऑप्टिकल रिटोरिक हैं, जो ये ट्वीट्स हैं और ये सारा कुछ है, आई थिंक ये जंग को अवॉइड करने के लिए ही इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ईरान को प्रेशराइज किया जा सके। ग्राउंड के ऊपर जब तक कोई प्रैक्टिकल सामने विजिबल मूवमेंट नज़र नहीं आती, तब तक इसके ऊपर कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली या डिसाइसिवली कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा अहमद, ये बात भी ट्रंप ने की है कि इस वक्त ईरान की जो फ़ज़ाएँ हैं वो हमारे कब्ज़े में आ चुकी हैं और हम किसी भी वक्त उनकी जौहरी तनसीबात जो हैं, बल्कि मैं सईद मोहम्मद खान साहब की तरफ चली जाती हूँ कि किसी भी वक्त ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर सकते हैं, हम करेंगे या नहीं इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप अग्री करेंगे अहमद की इस बात से? वो कह रहे हैं कि ये रेटरिक है और ये जानबूझ के प्रेशर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। मैं अहमद की सब बातों से एग्री करता हूं एक्सेप्ट वन के ग्राउंड पे मूवमेंट नहीं हो रही है। मेरे नजदीक तो जो है ना जो इजराइल की फ्रेंडली फोर्सेस हैं वो अपने आप को ईरान के इर्द गिर्द पोजीशन कर रही। ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर विस्कॉन्सिन फ्लोटिला था और अब निमिट्स को भी कह दिया गया कि उधर पहुंच जाए, तो अगले 2 से 3 दिन में निमिट्स भी उधर पहुंच जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वेस्ट से और नॉर्थ से जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां से इजराइल और अमेरिकन के पास डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है। और अब साउथ में अगर 2 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे तो वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग लाइक 200 एयरक्राफ्ट।
ठीक है ना। अब कल रात ही को इंग्लैंड ने भी अपनी जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जो उनकी फोर्सेस हैं उधर उन्होंने और जहाज भेज दिए हैं, तकरीबन 60 या 65 के करीब, ठीक है ना। सो फोर्सेस तो जमा हो रही, लेकिन अहमद की मैं इस बात से फुली एग्री करूंगा कि मुझे भी इस वक्त ये रिटोरिक लग रहा है कि किसी तरीके से ईरान जो है वो क्या कहते हैं ब्लिंक कर जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर आई एम श्योर कि आप सब लोगों की निगाह में होगी, और वो है कि जो कल रात को प्रेसिडेंट शी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जी। मेरा ख्याल है कि उस स्टेटमेंट ने काफी ब्रेक्स लगाई हैं, जिस तरह इजराइल और उसके हवारी जो हैं वो ईरान पे यानी कि जो प्लान कर रहे थे, अब उनको एक नई डायमेंशन के बारे में भी सोचना है कि क्या चीन तो इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली शामिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो चीन की स्टेटमेंट है या प्रेसिडेंट शी की स्टेटमेंट है, इट वाज एक्चुअली अ स्नब टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि दुनिया, अगर अमेरिका दुनिया की इज्जत नहीं करता तो दुनिया उनके बगैर आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि ईरान और इजराइल का एक सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है जिसमें अमेरिका ना हो, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। सो इस वक्त जो है एक वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है दोनों ममालिक में, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में इजराइल ऑलरेडी ब्लिंक कर चुका है, मतलब ये कि वो आज तक 1973 के बाद इजराइल ने अपनी सरजमीन पे इतने ना धमाके सुने थे, ना इतनी डिस्ट्रक्शन देखी थी। 50 साल के बाद अब जब ये हो रहा है तो वो अपने हवारियों को और खासतौर पर अमेरिका को कोशिश कर रहा है कि इस जंग में घसीट ले, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान के दरमियान हुई तो ईरान तो शायद ये बीटिंग ले सकता है, ऐसे ही है। और सईद मोहम्मद खान साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुसलसल जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उसकी वजह से ईरान के जो डिफेंस एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं उनकी मिकदार भी कम होती जा रही है। तो लग ऐसे ही रहा है कि ट्रंप जानबूझकर अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने सो दैट वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए या फिर कंप्लीट सरेंडर भी कर दे। जनरल साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। व्हेन इट कम्स टू मीडिएशन, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पर जाकर तो फिर बातचीत की तरफ आना ही पड़ेगा, जो अहमद भी बात कर रहे थे, और अल्लाह करे मजीद एस्केलेशन की तरफ ये मामला ना जाए। कौन सा मुल्क ऐसा है जो इसके अंदर किरदार अदा कर सकता है अमेरिका के अलावा? देखिए, अमेरिकन वुड नॉट के कोई उसके अलावा, जो ट्रंप ने इस वक्त अपना जो एक अपना बना लिया है कि जी आई एम द पीस मेकर एंड आई एम द डील मेकर। डील करता है स्टिक एंड कैरेट, दोस्तों के खिलाफ भी उसी तरह इस्तेमाल करता है और दुश्मनों के खिलाफ भी उसी तरह इस्तेमाल करता है। और ट्रेड को उन्होंने लीड पॉलिसी में रखा हुआ है, शुरू ट्रेड से करते हैं, बिजनेसमैन है। दे वुड नॉट लाइक, उन्होंने देखें अभी मैक्रोन ने आप G7 के जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने मैक्रोन ने जब बातचीत की के बाद तो प्रेसिडेंट ट्रंप के रिमार्क्स क्या हैं? उन्होंने कहा कि वो नाउ देयर इज नो डील जाने से पहले, एंड मैक्रोन इज अ गुड गाय। वो ऐसे डील करे जैसे उनके ऑफिस पे कोई ऑफिस बॉय है ये वो प्रेसिडेंट, तो इस तरह का तो उनका एटीट्यूड है। कहने का मकसद ये है कि अमेरिकन वुड नॉट लाइक कि ये डील किसी और के थ्रू हो। यस, अगर वो देखेंगे कि अभी देखिए बड़ा एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो नेतन्याहू है उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? ट्रंप इज द एग्जिट कार्ड उसका, और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स भी खत्म है और बाकी चीजें भी खत्म है। नेतन्याहू अपना पॉलिटिकली एक इज एट द लोएस्ट, और वो वॉर अगर फिर अमेरिका ने उनको जीत के देनी है तो वो उस स्टोरी से भी बाहर हो जाता है और वैसे भी बाहर हो जाता है। तो उसका एग्जिट कार्ड है कि ट्रंप जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर में। इसमें जो मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है कि कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल ना करवा दे, कतर में, ओमान में, कुवैत में अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर ऐसा एक हमला करवा दे। दे कैन डू दिस इज अ डीप, ये जो स्टेट होती हैं जी, और आइडियोलॉजिकल और रेडिकलाइज्ड किस्म की, जब पॉलिटिकल इनको लीडरशिप ना कहिएगा, ये पॉलिटिकल टेररिस्ट ये कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने लोगों का खून बहाकर एक ड्रामा कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले मोदी साहब ने अपने 26 लोगों का खून निकाला और उस खून की स्याही से ऑपरेशन सिंदूर लिख दिया, तो ये यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दैट इज अ सीरियस, बट हाउएवर चाइना और रशियंस कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो डायलॉग की तरफ चली जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले डीएस्केलेशन से ये शुरू हुआ, तो डीएस्केलेशन का सफर जो है ये कैप्चुलेशन पे चला गया, पहले पॉलिसी कैप्चुलेशन। ईरान को भी पता है कि अगर न्यूक्लियर चाहे पीसफुल यूज के लिए और इस न्यूक बनाने के लिए, अगर उसके लिए इवन
पीसफुल यूज के लिए भी अगर आउट होता है तो फिर भी वो इसको छोड़ेंगे नहीं। Who would give them guarantee? ट्रंप की बात पे तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अगर शीशे में अपने से बात करे तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि भाई साहब मुझे आपकी बात पे जनरल साहब समझ भी तो नहीं आती है कि ऑलरेडी मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान मौजूद था, मुज़ाकरात चल रहे थे, अगला दौर होने वाला था और उस दौरान इजराइल का अटैक कर देना। अहमद, आप जरा ने किस तरह से इस सारी सिचुएशन को एनालाइज किया, और जब अटैक कर दिया तो फिर दोबारा से कहा जा रहा है ईरान को कि भाई आप मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। भाई वो तो ऑलरेडी मुज़ाकरात की टेबल पर थे। जी देखें, जैसे जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि आप इन एक हद तक इसराइल के ऊपर आप ह्यूमन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स लगा सकते हैं, लेकिन वो हैं ही नहीं। वो एक फैशिस्ट, एक रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। मैं सिर्फ जन साहब की बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि टाइम्स ऑफ इसराइल की रिसेंट खबर थी कि जो चीफ रेबाए हैं इसराइल के, उन्होंने नेतन्याहू को कहा दैट यू आर द लास्ट प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे बाद हमारा सो कॉल्ड मसाया है। इस तरीके की जब रेडिकलाइजेशन होती है तो उसमें आप ह्यूमन थ्योरीज एक हद तक लगा सकते हैं। जैसे जन साहब ने कहा कि वो किसी भी टाइम पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इट्स हाईली लाइकली है कि वो इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है, जो नेतन्याहू का ये पर्टिकुलर जो ईरान पे अटैक था, इस पे नेतन्याहू की इस वक्त जो इसराइल की सबसे बड़ी वीकनेस है, एक तो वो ये है कि क्योंकि उनकी 92% पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती है और वो जंग के लिए तैयार नहीं है। 2% लोग पिछले 1.5 साल में परमानेंटली इसराइल छोड़ चुके हैं। दूसरी उनकी बड़ी जो वीकनेस है वो ये है द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट इज ब्रोइंग अगेंस्ट नेतन्याहू। और ये जेरूसलम पोस्ट की अपनी रिपोर्ट है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह का एक मोशन कनेसे जो थी नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में चल रहा था, और ये जो ईरान के साथ जो स्कर्मिशेस हो रही हैं उसको बहाना बना के नेतन्याहू ने उसको पोस्टपोन कर दिया। सो दिस कुड आल्सो बी अनदर रीजन कि उसने इस टाइमिंग को क्यों सिलेक्ट किया। और अभी जैसा आपने कहा, अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो रोका क्यों था? एग्जैक्टली। सो वो जाहिर है दिस स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन आपको नजर आती है कि जो नजर आ रहा है वो नहीं है जो असल में हो रहा है, जो बैकग्राउंड में हो रहा है। ठीक है। अच्छा अनवर इकबाल साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। इस वक्त जो ईरान और इजराइल की सिचुएशन में अमेरिका किरदार अदा कर रहा है, या ट्रंप की जो पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, जो कि अगेन हम यही बात करें कि कुछ कन्फ्यूजन उसमें है, समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका के अंदर से भी उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और उनको अपोज किया जा रहा है। इसके बारे में आपके पास क्या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए, इसमें तो सबसे जो ऑब्वियस चीज़ है वो जो कुछ कांग्रेस में आपने देखा होगा कि 2 रेजोल्यूशन मूव हुई हैं, एक सेनेट में और एक हाउस में, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को इस जंग में बराह रास्त मुलविस नहीं होना चाहिए। फिर ये भी मुतालबा किया गया दोनों रेजोल्यूशन में कि जंग की ऑथराइजेशन जो है सिर्फ कांग्रेस दे सकता है। हाँ, सदर अपने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये सूरत ऐसी नहीं है जिसमें सदर को अपने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ट्रंप को चाहिए कि वो कांग्रेस में जाए, उससे परमिशन लें, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। तो एक हद तक तो वहाँ रेजिस्टेंस है। इंतजामिया में भी अफराद जरूर ऐसे होंगे जो उनको बात रखने की कोशिश कर रहे होंगे। खुद मैं समझता हूँ सदर ट्रंप भी इतने विलिंग नहीं है। इसराइल का प्रेशर अपनी जगह, लेकिन सदर ट्रंप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, उस बात के बड़े मुखालिफ हैं। उन्होंने बार बार कहा कि हम खामखा तवील जंगों में मुब्तला हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होना पड़ता है। वियतनाम से निकलना पड़ा अमेरिका को, अफगानिस्तान से, इराक में भी देखिए अहदाफ हासिल नहीं हुए। वो एक ऐसी हुकूमत बनाना चाह रहे थे जो प्रो अमेरिका हो, जो नहीं बन सकी। तो इसलिए मेरा ख्याल है खुद सदर ट्रंप भी रिलक्टेंट है। खुद सदर ट्रंप भी इसमें रिलक्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद उनके बयानात से अनवर साहब लगता कुछ और है। अभी अहमद ये बात कहते कि ट्रंप को हमें शायद इतना ज़्यादा या दुनिया को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्या अमेरिका के अंदर उनको इतना सीरियस लिया जाता है? भाई बिल्कुल लिया जाता है। ट्रंप एक नया फिनोमेनन है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। उन्होंने अमेरिका में जो वोट्स हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के तकरीबन बराबर हैं। कोई अगर एडिशनल एडवांटेज ले जाए तो उसका अपर हैंड हो जाता है, और इन्होंने एक ऐसे पॉकेट को एक्टिवेट किया है जो कभी वोट नहीं था, जो देहातों में रहने वाले वाइट अमेरिकन हैं और जो ये समझते हैं कि उनको माइनॉरिटी से खतरा है, तो वो उनका वोट मिलके वो हमेशा इलेक्शन उनके इवन उनके कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाते हैं। तो उनकी अहमियत तो बहुत है और वो अपनी मनमानी करते भी हैं। मगर ये भी बात है कि जो मारूजी हालात हैं वो भी असरअंदाज होते हैं। देखें, अगर जिस तरह ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, हो सकता है उसको अमेरिका की ब्लेसिंग हासिल हो, और क्योंकि पहले तो लगता यही कि इसराइल की तवक्को ये थी कि वो हमला करेंगे और उनको डिसिमेट कर देंगे फौजी क़यादत को, और तो उसके बाद वो अपने घुटनों पे बैठ जाएंगे और हमारी आसानी से फतह हो जाएगी। लेकिन हुआ नहीं, ईरान खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी तवील जंग नहीं चाहता था। फिर ईरान ने अपनी अहलियत का भी मुजाहरा किया कि वो टारगेट्स
को हिट कर सकता है दूर से। इसराइल के अंदर इतनी तबाही नहीं फैली इसराइल में जितनी ईरान में फैली, लेकिन उन्होंने किया और इसराइली उसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब जंग तवील होती नजर आ रही है तो फिर ज़ाहिर है खुद इसराइल में भी मुखालफत है जंग की, और अमेरिका में भी लोग नहीं चाहते मुलविसों, और अब सदर ट्रम्प भी इशारे दे रहे हैं कि वो अगर बातचीत के जरिए कोई अनवर साहब, आपने जो बात की कि ईरान खड़ा हो गया और इसराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यूएसए ने या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था, या वहाँ पर जो इस वक्त वाइट हाउस के अंदर लोग मौजूद हैं, जो कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ईरान की तरफ से इस तरह का रिस्पांस आ सकता है? नहीं, मेरे ख्याल सबके लिए सरप्राइज है ये। सबका ख्याल ये था कि जिस आसानी से चीजें अनफोल्ड हुई थी ना सीरिया में, देखिए सीरिया में इतने अरसे से ईरान बैठा हुआ था, और उससे पहले से वो जो उनकी बशार और उनकी हाफिज अल-असद, वो जो उनकी फैमिली, असद फैमिली की हुकूमत थी, उसके बाद जो कुछ लुबनान में जितना असर और रसूख था, वो तकरीबन अनऑफिशियल गवर्नमेंट थी हिजबुल्लाह की, वो जिस तरह रैप अप किया और उनको मजबूर कर दिया भागने पर, तो उसके बाद तवक्को यही थी कि ईरान में भी वही होगा, लेकिन ईरान में वो नहीं हुआ। फिर एक तवक्को और थी कि ईरान में गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर है, तो अगर वहाँ इस तरह का अटैक हुआ तो ईरानी अवाम बगावत कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो कई सरप्राइजेस मिले, और एक सरप्राइज ये भी था सईद मोहम्मद खान साहब कि मुस्लिम जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, स्पेशली अगर मैं गल्फ कंट्रीज़ की बात करूं, सऊदी अरब की ख़ास तौर पर बात करूं, उन्होंने कंडेम भी किया इस अटैक को, और ईरान के बारे में ये बात भी की कि उन पर जो अटैक हुआ है वो ठीक नहीं था। आपको लगता था कि सऊदी अरब की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा ईरान के लिए ख़ास तौर पर? मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया का जो रिस्पांस था वो सबसे एक प्लेजेंट सरप्राइज था इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के ऊपर, और जिस तरह गल्फ कंट्रीज ने यूनानिमस होके ईरान को सपोर्ट किया है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। देखिए, मुसलमानों के अंदर भी एक डिवाइड है, ठीक है ना, एक डिवाइड थी जिसमें शिया सुन्नी डिवाइड थी और अरबी और अजमी डिवाइड थी, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से प्रिंस MBS ने क्या कहते हैं इस मसले को हैंडल किया है, मैं समझता हूं कि मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक बहुत ही खुश आइंद चीज है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि MBS का प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक बहुत इन्फ्लुएंस है, और अगर बिहाइंड द सीन्स UAE, कतर और सऊदी अरेबिया मिल के प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करें कि अमेरिका को इस जगह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और वो उनके लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डायरेक्टली अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना करें। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कम से कम होता जा रहा है, और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो अंदर आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगले 2 से 3 दिन में अगर ईरान ने अपनी ये जो उन्होंने मिसाइल बराजेस तल अवीव, हैफा और यरूशलेम के ऊपर फेंक रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रखे, ठीक है ना, तो बहुत जल्द यानी कि नेगोशिएशंस शुरू हो जाएंगी। और ऑलरेडी इस वक्त ईरान एक वफद कतर में बैठा हुआ है जो ये पीस टॉक्स के लिए कतर की एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज ने बिहेव किया है, इंशाल्लाह आगे जो है मुस्लिम कंट्रीज ठीक है। खान साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं चाहूँगी बाकी दोनों मेहमानों का भी एक एक पॉइंट आ जाए। अहमद, आपको क्या लगता है अब मुस्लिम कंट्रीज़ मज़ीद क्या रोल प्ले कर सकती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और क्या आपको मज़ीद ये एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है या फिर बैठ जाएगा मामला? देखिए, एज लॉन्ग एज एस्केलेशन इज़ कंसर्न्ड, अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम होंगे। सिचुएशन वॉलेटाइल है, किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा आगे जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं कि ये एस्केलेशन की तरफ जाएगा, डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, या तीसरी ऑप्शन भी है ऑप्टिकल स्कर्मिशेस। वो दोनों आपस में करते रहेंगे, और जिस तरह इसी साल में पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, वो मैग्नीट्यूड में इससे हल्का था ईरान इसराइल वो वाला कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब क्या होगा, एक तो ये, दूसरी बात ये कि
آہستہ آہستہ مسلم دنیا کے پاس یونیفیکیشن کے علاوہ اور کوئی آپشن بچ ہی نہیں رہی. وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا جو انہوں نے مسلم امت کے اوپر فرمایا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. سو یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے یہ جو ایگریشن آ رہا ہے یہ مسلمانوں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑ رہا سوائے اس کے کہ وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ پوز کریں بجائے اس کے کہ وہ اکیلے اکیلے نشانہ بنے. رائٹ جنرل صاحب، آپ کا اس پر کیا پوائنٹ ہے کہ مسلم دنیا کے پاس اب کیا آپشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان اور امریکہ کا ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی کامنٹ؟ جی بالکل آغاز ہو سکتا ہے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن شپ کا، بٹ ایز آئی سیڈ کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ کی ہمیشہ ونڈوز آلویز ویری شارٹ. پاکستان کو کرافٹلی اپنے کارڈز کھیلنے ہیں بیکاز وی ہیو اے سیریس تھریٹ ٹو پاکستان. ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے جی انڈیا، اٹس ناٹ این آرڈنری تھریٹ. اور ہمارے جو وائٹل انٹرسٹ آپ دیکھ لیں، کشمیر اور ساورینٹی، ہمارا بارڈرز اور اب پانی، تو یہ اس کا اور وہ نیگوسیشن بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتا. تو اس ریجن میں وار کا رکنا تو کشمیر ایشو پر بات ہوگی اس میٹنگ میں آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں کشمیر پہ بالکل جی پاکستان ان کا شکریہ ادا کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پاکستان کا کیس آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ بتائیں گے کہ وٹ از دی ریئل اسٹینڈ، تاکہ وہ ان کو ایک جب آپ کی کیمسٹری ملتی ہے، آپ آمنے سامنے بات چیت کرتے تو اس کا امپیکٹ. اور جنرل عاصم ہیز دا کیپیسٹی کہ وہ پاکستان کا مقدمہ بہت اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے کہ ہاؤ وی آر ویئنگ دیئر رول اور اس میں ہرڈلز کیا ہیں، اور وہ آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ سوٹ کرے گا. ایز فار ایز مسلم ورلڈ از کنسرنڈ اٹس اے چیلنجنگ کویسچن ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ان کو یکجا کرنا. دیکھیں 2015 میں سعودی عربیہ، بحرین، ان لوگوں نے سب سے زیادہ، یا یو اے ای نے اس کی مخالفت کی تھی جو معاہدہ ہوا تھا. 18 میں خوش بھی تھے، بٹ اینی ویز جس طرح احمد فرما رہے ہیں کہ تھنگز ہیو چینجڈ. اب ان کو اب کلیئر دشمن بھی نظر آ گئے ہیں اور دوست بھی نظر آ گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ جب تک یکجا نہیں ہوں گے، تو جب تک کامن اس کو تھریٹ نہیں سمجھیں گے، اونلی آپشن there is no option، کیونکہ یہ پالیسیز ایکسپینشنسٹ پالیسیز نے چلنا ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے، وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. انور صاحب لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گے 20 سیکنڈ کے اندر آپ بھی کر دیں اس کرنٹ سچویشن کے اوپر ایران اور اسرائیل کی. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی نازک صورتحال ہے، بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا. ہم ذرا سی غلطی سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور ہم اگر احتیاط سے کام لیں تو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے ایران کی صورتحال سے. اور جہاں تک بات ہے مسلم اتحاد کی، تو میں 22-23 سال سے ہر سال کور کر رہا ہوں یو این جنرل اسمبلی. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے OIC کی میٹنگ میں کہ مسلم ممالک کشمیر کا مسئلہ ریز کرنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو پھر ایران اور عربوں کے بہت ریئل ڈفرینسز بھی ہیں. تو اتنی آسانی سے ہماری خواہش ہے، پاکستانی کے جذبات ہیں اتحاد کے، لیکن مسلم دنیا میں اس کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی ہے. لیکن رائٹ ناؤ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی بات رکھ سکتا ہے دنیا کے سامنے. بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا. مجھے اجازت دیجیے، وقت ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات کریں گے دوبارہ. اللہ حافظ.